ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। 3 ਡਾਕਟਰ ਤੇ 1 ਸਰਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੌਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ 1 ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਜਨੇਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ? बिल्कुल गल करिए तो जरा की है हुण 5वें डॉक्टर से जी है 5वें अधिकारी से गाज जी लगी हैगी है। पहला 4 जणा से जी कार्रवाई हुई थी, क्योंकि 3 जणा की मौत जी है मंदभागी घटना जलंधर के सिविल हस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भी गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट के टैक्नीकल फॉल्ट आया था। तो उस समय जो गल इसलिए वड्डी हुई जो टैक्नीकल फॉल्ट आया उस समय कोई भी डॉक्टर जो टैक्नीशियन मौजूद नहीं सीगा, ना ही उत्थे जल्दी जो डॉक्टर होंदी वो मौजूद सी, ना ही उत्थे डेमो मौजूद सीगा, ना ही एमएस मौजूद सीगा। तो हालात जो 35 मिनट तक बिगड़ते रहे, जिस करके 3 लोगों की जी है उत्थे वेंटिलेटर जो 3 मरीज सीगे उन्हां दी मौत हो जाती है। तो उस तो बाद मीडिया तक गल पहुंचती है, मीडिया वालों जो खबर नूं ब्रेक किया जाता है तो पहला एमएस कहते हैं कि 9 मैंबरी कमेटी बनाई जाती है। फिर इस तो बाद जी हेल्थ मिनिस्टर खुद रात में पहुंच के जिससे कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। तो कार्रवाई जी है सब तो पहला एमएस नूं मैडिकल सुपरिटेंडेंट जो एसएमओ है और डॉक्टर सोनाक्षी सी उन्होंने जो है सस्पेंड किया जाता है। उस तो बाद जो हाउस सर्जन को डिसमिस किया जाता है। तो हुण एक वड्डा एक्शन लिया गया है, जो टेक्नीशियन थे उन्होंने जो है डिसमिस कर दिया गया है। बिल्कुल सहज, जिस ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਤੇ 1 ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਲੋ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। बिल्कुल जरा हाले तक जानकारी अधिकारिक मिली है कि छुट्टी से सीगा, उस समय मौजूद नहीं सीगा। तो उस समय किसी दर्जा 4 कर्मचारी को जो है काम करवाया गया है। तो कोई टेक्नीशियन चाहे छुट्टी से हो पर जो एमरजेंसी होती है मौके पर आना ही पैंता, क्योंकि एमरजेंसी सर्विस है। तो उस समय हॉस्पिटल ना आया हो, क्योंकि जी खुशी यही है कि वो छुट्टी से सीगा। तो छुट्टी के होने के बावजूद भी जी कार्रवाई की, क्योंकि ये लोग जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस से जो काम करते होंगे। ठीक है सहज, बहुत शुक्रिया। सहज जुनेजा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सी। जलंधर हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਡਾਕਟਰ ਤੇ 1 ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने QR कोड लाना जरूरी कर दिता। वड्डी खबर है। बहुत सारे लोग ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ QR ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ QR ਕੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। फूड सेफ्टी कनैक्ट मोबाइल ऐप का QR कोड है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ऐप इंस्टॉल करनी पेगी अपने मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਢਾਬੇ ਹੋਣ, ਕੈਫੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ QR ਕੋਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਗੀ ਹੋਣ ਤੇ शिकायत हो सकेगी। के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, FSSAI ने एक निर्देश जारी किए हैं तमाम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए। बिल्कुल आपने सही सुना, अब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, खाने पीने की दुकानों पर तमाम जो ग्राहक आते हैं उनके लिए ये खबर बेहद अच्छी और ख़ास है, राहत पहुंचाने वाली है। क्योंकि अब आप अपने होटल रेस्टोरेंट में जो आप खाना खाते हैं उस व्यंजन के स्वाद के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, आसपास के एटमॉस्फेयर के बारे में, साफ सफाई के बारे में एक QR कोड के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये निर्देश FSSAI ने दिए हैं। FSSAI क्या है आपको दिखा दूं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे आप जैसे तमाम ग्राहकों के लिए तमाम कई ऐसे महत्वपूर्ण कड़े कदम उठाती है ताकि जो ग्राहक हैं वो संतुष्ट रह सकें। अब आप जो भी खाना खाते हैं वहाँ की गुणवत्ता की जो शिकायत है एक QR कोड के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। अब तमाम ये फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को एक निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आप अपने FSSAI का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ग्राहकों के सामने रखें, ताकि जब ग्राहक वहाँ पर उस स्वादिष्ट व्यंजन का या उस एटमॉस्फेयर का आनंद और लुत्फ उठा रहे हैं तो वो उस QR कोड के माध्यम से उसके बारे में अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो व्यथा है, जो शिकायत है वो अब दर्ज करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ग्राहकों को ये खबर पसंद आई होगी। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी की है और वो भी ग्राहकों के लिए। ग्राहकों के लिए खुशखबरी है कि जब भी आप किसी ढाबे पर या किसी होटल में खाना खाने जाते हैं या कोई चीज खाने जाते हैं जहां खाने पीने का सामान मिलता है, तो वहां अब होटल मालिक को, ढाबे मालिक को QR कोड और जो अपना फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा। और वो लगा करके वो ऐसी जगह लगाना होगा कि जहां से ग्राहक को दिख सके। अगर वहां साफ सफाई नहीं है, खाने में कोई कंप्लेंट है, तो आप वहां स्कैन करके तुरंत उसकी शिकायत फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कर सकते हैं। हम पंचकुला के सेक्टर 10 में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ढाबे हैं, कई ढाबे हैं यहाँ। जो ढाबे अपना वैष्णो ढाबा है, अपना किचन करके है, तवा ढाबा है, इसको कहीं ना कहीं एक ढाबा चौक भी कहा जाता है। तो कई ढाबे यहाँ मौजूद हैं और इन ढाबों के ऊपर हम देखते हैं कि किस तरह से वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो गाइडलाइंस आई है वो गाइडलाइंस क्या फॉलो हो रही हैं, तो बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि साफ सफाई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लेकिन पूछेंगे कि एक जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो गाइडलाइंस नई जारी हुई है, आपसे जानना चाहेंगे। तो उसमें कहा गया है कि जो आपका फूड सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन है वो आपने लगा रखा है? जी लगा रखा है। ये सामने बिल्कुल फ्रंट। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने फूड सेफ्टी जो अथॉरिटी है उसने गाइडलाइंस में कहा है कि अपना जो लाइसेंस है वो लगाना पड़ेगा और वो लाइसेंस यहाँ लगा रखा है। कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि ये जो लाइसेंस है ये आम ग्राहक को दिखना चाहिए। जी जी बिल्कुल दिखना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर उनको ग्रीवेंसीज है, कोई समस्या है, कोई खाने में प्रॉब्लम है या साफ सफाई नहीं है तो उसकी शिकायत कर सकते। बिल्कुल कर सकेगा, बिल्कुल। तो ये कस्टमर का राइट है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कस्टमर का राइट है, वो खुद ही कह रहे हैं कि और फूड जो सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो सेफ्टी एजेंसी है, जो अथॉरिटी है, उसने ये गाइडलाइंस जारी की हैं।